Okay, so I'm starting. Are you able to see the presentation, guys? Yes. Okay. So just give me a minute. So good morning, one and all. Today's topic is high cholesterol and health. Myself, dietitian Archana, director Enkian, and Know Your Foods from on behalf of Enkian and Know Your Food. Welcome you all. And for today's topic, we will definitely discuss all the things related to cholesterol and how it is affecting our health. And your questions are welcome. You can write down in the chat box as well so that we can take on all in the later. And by the time maybe Dhara can join also. So it will be really wonderful for us also. Right. So next is what is cholesterol? The cholesterol is a fatty substance, lipid, which is essential to healthy life. It is found in the brain, nervous tissues, skin, and adrenal glands. It has three main functions within the body. As you we all know, हम लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल हमें नहीं लेना चाहिए, हमें फैट्स नहीं लेने चाहिए. ये आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जो मैं देख पा रही हूँ कि लोगों बिल्कुल जीरो फैट पर आ गए हैं. राइट. सो फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो देयर इज नो नीड कि आप बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल को जीरो बताएं. सबसे पहली बात तो यहीं से शुरू करते हैं. Like it is used in the structure of all cell membranes. If you are not having cholesterol in your diet, then what will happen? Definitely you can see like brain function, nervous tissues, skin and adrenal glands. ये सब इफेक्टिव होने वाले हैं. और जो हमारा it is used to manufacture steroid, hormones and vitamin D within the body. As we are knowing, like vitamin D deficiencies भी आजकल बहुत ज्यादा हो रही हैं. Right. So many people are there जिनको विटामिन डी डेफिशिएंसी है और फैट कम खा रहे हैं. तो हमें पता चलता है, हमें यही लगता है कि शायद हमें अब फैट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. बट होगा क्या कि जब हम फैट बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं और विटामिन डी जो हमारा है वो बॉडी में नहीं बन पाएगा. सो इफ third thing is that it is used to produce bile acids which aid the digestion and absorption of fats in the diet. सो अगर हम लोग जो भी फैट खा रहे हैं या जो बाइल जूसेस हमारी बॉडी में बन रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो अगेन क्या होने वाला है, हमारी बॉडी में जो नुकसान हो जाएगा बाकी की चीजों से. राइट. जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, जो भी सबसे ज्यादा आजकल प्रॉब्लम अगेन है लोगों के साथ में कि वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है फूड. दो वी आर केपेबल ऑफ ईटिंग मैक्सिमम फूड, healthy food, but still we are not digesting it or absorbing it properly, so the this deficiencies are coming out. Right. So cholesterol is manufactured mainly in the liver, but it is also present in saturated fat found in meat and dairy products and many processed foods. Excess saturated fat in the diet increases the blood cholesterol. So I think now it's clear what is cholesterol. So why is too much cholesterol harmful? Though I have said that cholesterol is required for our body for so all three main functions. But if there is too much cholesterol in the bloodstream, it can build up to in the walls of your blood vessels, like lime scale furring up a water pipe. देखा है ना कि पानी जहां पर खारा पानी आता है, पाइप के अंदर धीरे धीरे लाइनिंग आ जाती है. हमारा जो भी यूटेंसिल्स हम यूज कर रहे होते हैं जिसमें पानी हम स्टोर करके रखते हैं, वहां पर भी धीरे धीरे उसमें लाइनिंग आने लग जाती है, तो जमने लगता है. सेम थिंग हैपन जब कोलेस्ट्रॉल हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो है इनसाइड ऑफ द ब्लड स्ट्रीम या ब्लड वेसल क्लॉटिंग शुरू हो जाती है. राइट. जिससे कि हमारे मैकेनिज्म को नुकसान पहुंचता है बिकॉज द जो पाइप है वो नैरो फ्लो हो जाता है एंड ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है. However, all risk factors have to be looked at together and not in isolation. When there are other risk factors such as smoking or high blood pressure, then a high LDL cholesterol level will multiply the overall risk, not just add to it. Right. So keep in mind कि like अगर स्मोकिंग कोई कर रहा है और ब्लड प्रेशर उसको है तो उसका एलडीएल और ज्यादा हाई हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स. ऐसा नहीं है थोड़ा सा हाई होगा, मल्टीपल टाइम्स हाई होगा, तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है. सिम्टम्स क्या है हाई कोलेस्ट्रॉल के?
we should know all about this also. High cholesterol doesn't cause any symptom, but it does cause damage deep within the body. Over time, too much cholesterol may lead to a buildup of plaque inside the arteries, known as atherosclerosis. This condition narrows the space available of blood flow and trigger the heart disease. जैसा अभी मैंने आपको बताया था, क्या हो रहा है, प्लाक इनसाइड द आर्टरी बन जाएगा तो ब्लड फ्लो हमारा इफेक्टेड होगा और हार्ट डिसीज होने के चांसेस होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, जो प्लाक इनसाइड द आर्टरीज है, अथेरोस्क्लेरोसिस. एवरीबडी मस्ट बी नोइंग दिस. The good news in high cholesterol is simple to detect and there are many ways to bring it down. तो high cholesterol को कम करना is not that tough. We can easily reduce the high cholesterol. बहुत आराम से हम इसको कम भी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं इसके लिए? High cholesterol can cause a dangerous accumulation of cholesterol and other deposits on the walls of arteries. These deposits can reduce blood flow through your arteries, which can cause complications. क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कई बारी हमारी बॉडी में जो हमें नहीं पता चलते हैं, लाइक चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक्स आ जाते हैं और स्ट्रोक. चेस्ट पेन में क्या हो रहा है, आपको आर्टरीज में जब सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही है ब्लड की, तो हमारे एंजिना पेन जिसको हम कह सकते हैं, या फिर ये एक सीएडी का एक सिम्टम है. लाइक चेस्ट में आपको हैवीनेस फील होगी, पेन होगा, एग्जैक्टली ऑन द चेस्ट रीजन. ओके, उसके बाद भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया, then what will happen? लाइक हार्ट अटैक में आपका प्लाक, हार्ट अटैक कैसे होता है कि आपका प्लाक जो है वो टियर हो जाएगा या रप्चर हो जाएगा, और जो ब्लड क्लॉट है कैन फॉर्म द प्लाक रप्चर साइड पे. जहां पर भी वो रप्चर हो रहा है उसी जगह पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है. तो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आपका जो आर्टरी में जो फ्लो है वो रुक जाता है और हार्ट काम करना बंद कर देता है और हार्ट अटैक हो जाता है. थर्ड क्या है कि स्ट्रोक. हार्ट अटैक की तरह ही जब ब्रेन में क्लॉट आ जाता है तो उसको हम स्ट्रोक कहते हैं. अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना है, सब कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना है. जैसे सभी लोग हम बात करते हैं और बार बार कि सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए. सबसे पहली चीज हमारा कि हमें डाइट पर ध्यान देना है. डाइट कैसी होनी चाहिए हमारी? लो फैट लो सॉल्ट डाइट, जिसमें हम फोकस कहाँ करने वाले हैं? वेजिटेरियन फूड पर, फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर, होल ग्रेन्स पर. लिमिट करेंगे हम किसको? एनिमल फैट्स को, और गुड फैट्स को हम ऐड ऑन करेंगे. गुड फैट्स क्या होते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं सो दैट आई कैन चेक इट आउट. आप सब लोग लिखिएगा गुड फैट्स क्या होते हैं, राइट? या किस चीज में पाए जाते हैं. यू कैन राइट डाउन लाइक दिस ओनली. लूज एक्स्ट्रा पाउंड्स एंड मेंटेन अ हेल्दी वेट. If your BMI is not within the range of normal or just nearby to the overweight, it is okay. But when it is coming 20 to 26 or 27 more than that, like you are coming to the category of obesity 1, 2 or 3, you need to shed out your weight. That is much more required for everyone, because whenever you are having any patient with you to reduce having like excess weight with कोलेस्ट्रॉल, देन डेफिनेटली सबसे पहले आप क्या करोगे? उसका वेट कम करने की कोशिश करोगे, जिससे कि उसका जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने में आपको मदद मिल पाए, राइट? उसके बाद इफ ही इज स्मोकिंग, कोई अगर ऐसा है जो स्मोकिंग कर रहा है तो भी आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको उसकी स्मोकिंग को छुड़वाना ही छुड़वाना है. बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल को, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि अथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट डिसीज को मल्टीपल टाइम्स एड ऑन करेगा, राइट? अल्कोहल अगर कोई पीता है तो उसको भी आपको स्टॉप करवाना है, और अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसको मॉडरेशन में ले जाकर स्लोली स्लोली छोड़वाना है. क्योंकि अगर आप किसी को कहोगे नहीं आप बिल्कुल इमीडिएटली पीना बंद कर दो, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, राइट? तो हमें बहुत ही समझदारी के साथ में धीरे धीरे उनको स्मोकिंग से दूर ले जाना है और अल्कोहल से दूर ले जाना है. एक्सरसाइज एड ऑन करनी है उनकी डेली रूटीन में. लाइक व्हाट वी कैन से कि आप अगर बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप स्टार्ट करो 30 मिनट्स ऑन रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस. अगर आपको डेली टाइम नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं कि लाइक 50 मिनट्स 5 डेज इन अ वीक, तो 2 दिन आप स्किप कर सकते हो इन दैट वे. बट टेल देम कि कोशिश करिए जिस दिन आपका वीकली ऑफ होता है उस दिन आप जरूर करें. नॉर्मली क्या होता है, लोग जब वीक डेज में एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ऑफिस भी चले जाएंगे, पर वीक डेज में दे डोंट डू इट, मजे से सोते हैं. बट उनको बोलिए कि ये 2 दिन जो आपके होते हैं ना, सोना
is also a very good option to rejuvenate your body, but स्पेशल वर्कआउट आप उन 2 दिन में अगर करेंगे तो बाकी के जो 5 डेज हैं वो आपके बहुत हेल्दी होने वाले हैं, राइट? एम आई राइट? आप चैट बॉक्स में थम्स अप करके भी मुझे बता सकते हो, या अगर जिसने कैमरा ऑन किया है वो थम्स अप, मुझे विजुअल थम्स अप दे सकता है, राइट? यस, ओके, थैंक यू. सो लास्ट वन इज द मैनेजिंग स्ट्रेस. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आई विल टेल यू कि अगर कोई बहुत अच्छा खाना भी खा रहा है, ड्रिंक भी नहीं कर रहा है, और उसका क्या कहते हैं स्मोकिंग भी नहीं कर रहा है, हेल्दी फूड भी ले रहा है, वर्कआउट भी कर रहा है, बट स्ट्रेस इज देयर, तो मेटाबॉलिज्म हमारा अनडाउटली डाउन हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसकी वजह से भी वेट हमारा बढ़ जाता है. ओके, तो बिकॉज समटाइम्स आपने देखा हो एब्डोमिनल ओबेसिटी, बाकी बॉडी एकदम परफेक्ट है बट एब्डोमिनल ओबेसिटी है लोगों को, है ना, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, पतले दुबले हैं, तो दे आर रियली इन शॉक कि भाई हम तो अंडरवेट है, हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, हम तो वेजिटेरियन है, हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है. देन दिस इज वन ऑफ द रीजन. तो स्ट्रेस को दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम करें क्या इसके लिए? हमें सिम्टम्स भी पता चल गए, हमने प्रिवेंशन के ऊपर भी बात कर दिया, तो अब हम बात करेंगे कि हमें इसको कम कैसे करना है और तो ट्रीटमेंट क्या देना है. तो ट्रीटमेंट के लिए क्या, सबसे पहला तो मेडिकेशन है कि अगर आपका एक लेवल से बहुत ज्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो आपको मेडिकेशन पर जाना ही चाहिए, क्योंकि मेडिकेशन पे अगर आप जाते, जब आपका एक्सेस में हो जाता है तो आप सिर्फ डाइट से और एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल को कम मुश्किल से कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है सबको तो, बिकॉज जेनेटिकली भी आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है अगर किसी का, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अगर मेडिकेशन देना है, दो दिस इज नॉट अवर पार्ट, फिजिशियन ही इसको रिकमेंड करेंगे तो बेस्ट है, बट विट वी शुड नो अबाउट कि मेडिकेशन में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हमें क्या करना है. हमें स्टैटिन्स इज द फर्स्ट चॉइस. वो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं लिवर में, राइट, कि अगर जितना भी कैलोरीज हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको ब्लॉक करेंगे स्टैटिन्स. तो इन दैट वे यू कैन टेक केयर ऑफ दैट. ओके, then what is the next, like other options की cholesterol absorption inhibitors, bile acid resins and fibrates, इस तरह के कुछ medications हम लोग यूज कर सकते हैं. सप्लीमेंट्स का क्या रोल है? सब्सटेंस डाइटरी सप्लीमेंट्स, आजकल सब लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स के बारे में सुन रहे होंगे कि सप्लीमेंट्स यूज करिए, सप्लीमेंट्स यूज करिए. दो वी सजेस्ट विद द डाइट इट शुड बी इम्प्रूव्ड, बट जब कुछ कंडीशंस आपकी बहुत डिरेल्ड है, आपका कुछ इधर उधर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, then you can do what, like आपका सप्लीमेंट आपको कभी कभी लेने पड़ जाते हैं. कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जो हम अपने घर से ही, अपने किचन से ही ले सकते हैं, जैसे फ्लैक्सीड. फ्लैक्सीड ऑयल को क्या है, अगर आप फ्लैक्सीड ऑयल के कैप्सूल्स ले सकते हैं यू कैन हैव. अदरवाइज आप क्या करो कि फ्लैक्सीड को लेकर के बहुत लाइट हीट पर रोस्ट करिए उसको, और उसका पाउडर बना के अगर रखना चाहते हैं तो पाउडर बना के फ्रिज में रख दीजिए. डेली 20 to 30 ग्राम लेना है. ओके, अदरवाइज आप अगर सीड्स को ऐसे ही च्यू करके खाना चाहते हैं देन इट्स आल्सो वेरी गुड. तो आप उसको एज ए कहते हैं ना, जैसे गुजरात में मुखवास बोलते हैं, है ना, पोस्ट फूड आप इस तरह से खा सकते हो, या सुबह सुबह खाली पेट आप इसको खा सकते हैं. फिश ऑयल, जो लोग फिश ईटर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, दे कैन हैव द गुड क्वालिटी ऑफ फिश, है ना. और जो लोग वाटर फिश यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है फिश की, फ्रेश फिश की, या फिर जो लोग फिश ईटर नहीं है, वेजिटेरियंस है, दे कैन हैव द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फिश ऑयल के कैप्सूल्स ले सकते हैं. प्लांट स्टेरॉइड्स सच एज बीटा साइटोस्टेरॉल, ये फिर हमें इस तरह की हमें चीजें खाने में लेते रहना चाहिए, और मेडिकेशन के फॉर्म में भी वी कैन हैव इट लाइक अ नियासिन एंड द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स. Why? Because they have raised the good cholesterol and reducing the bad cholesterol. But always keep in mind कि हमें कितना लेना है. कई बार ऐसा भी आजकल केसेस आने लगे हैं कि लोग इतने ज्यादा सप्लीमेंट ले रहे हैं और उनकी बॉडी अगर अच्छा काम कर रही है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो रहा है, तो हाइपर विटामिनोसिस हो रहा है लोगों को. मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आ चुके हैं पेशेंट्स के, जिन्होंने रेगुलरली विटामिन कंटिन्यूसली लिए चले जा रहे हैं और डाइट भी प्रॉपर ले रहे हैं, तो उनको जो है आफ्टर इफेक्ट्स होने लगे. तो कीप इन माइंड कि अगर जब भी आप किसी को सप्लीमेंट दे रहे हैं तो यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली दे आर ईटिंग, बिकॉज अगर वो लोग अच्छा खाना खा रहे हैं तो हम बहुत वाइजली वी हैव टू चूज कि हमें उन्हें क्या खाने में देना है. ओके, तो इन चीजों का हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे.
कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग इज वेरी इजी. अब कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको सप्लीमेंटेशन क्या देना है या आप किस तरह से किन चीजों को करना है, आपको किस तरह से मैनेज करना है. तो सबसे पहले क्या है कि जो लोग 20 साल से बड़े हैं उनका कोलेस्ट्रॉल चेक बहुत आराम से हमको कम से कम 5 साल में एक बार कराना चाहिए. Whenever any patient come across to you, then you should ask them कि आपने क्या पिछले, अगर छोटे हैं तो 20 साल के आसपास के, 20, 25, 30 साल के, क्या आपने पिछले 5 सालों में कोई ब्लड टेस्ट कराया है, देन प्लीज शेयर द रिपोर्ट्स. और अगर वो अबाउट 30-35 ईयर्स के हैं, देन टेल देम प्लीज go for the test if you have not gone for within 1 or 2 years. राइट. और अगर वो 50 ईयर्स अबव है तो उनको हर साल टेस्ट कराने ही चाहिए, जिसमें आप सिंपल ब्लड टेस्ट में आप उनसे क्या बोलेंगे करने के लिए कि आप फास्टिंग लिपोप्रोटीन प्रोफाइल करवा लीजिए, जिसमें आपका सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं और हमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल सब हमें पता चल जाता है. एक चीज का और आपको उनको हमेशा बताइएगा कि जब भी आप लोग टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो प्लीज आप जो टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें आपकी 8 to 12 आवर फास्टिंग इज अ मस्ट. और जो आपका रूटीन चल रहा है वही रूटीन होना चाहिए. कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोगों को कल टेस्ट कराना है तो आज फटाफट हम लोग खाना खा लेते हैं जल्दी, है ना. तो क्या है, वो बॉडी का क्लॉक इमीडिएटली नहीं चेंज होता है. तो आपका सिस्टम यही होना चाहिए कि 9 बजे तक आप वैसे भी खाना खा रहे हो, जिससे कि 8-9 घंटे की आपकी फास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाए. राइट. कीप इन माइंड दीज थिंग्स. बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे. अभी हम लोग से कुछ सवाल आ रहे थे. आई होप धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस के सभी सवाल के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे. लाइक बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है? मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड इज कैरीड बाय प्रोटीन्स लोड दैट इज कॉल्ड द लिपोप्रोटीन. राइट. और हम उसको एलडीएल के नाम से भी जानते हैं. This is known as the bad cholesterol because it combines with the other substances और हमारी arteries को क्या करता है, वो clog कर देता है, बंद, रास्ता बंद कर देता है. So diet high in saturated fats and trans fats tends to raise the level of LDL cholesterol. For most people, an LDL score should be below 100 is the healthy. So, but people with heart disease may need to aim even lower, right? सो अगर किसी को हार्ट डिसीज है तो उनका 100 से भी कम होना चाहिए, और अगर जिन लोगों का नॉर्मल है, हार्ट डिसीज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका 100 इज द हेल्थ. ओके. सो नाउ आई कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, व्हाट इज द गुड कोलेस्ट्रॉल? बैड कोलेस्ट्रॉल तो आप लोगों को पता चल गया कि एलडीएल है, लिपोप्रोटीन. देन व्हाट इज द गुड? दिस इज द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. उसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड द गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट रिमूव द बैड कोलेस्ट्रॉल. तो अगर जो हमारा एलडीएल बढ़ता गया है सपोज आर्टरीज के अंदर, तो एचडीएल क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बिल्डिंग अप इनसाइड द आर्टरीज. ओके. सो द हायर द लेवल ऑफ एचडीएल इज द बेटर. तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है. हाँ सिद्धार्थ, प्लीज आप मैसेज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम लास्ट में क्वेश्चंस लेते हैं. So people with too little are more likely to develop heart disease. Eating healthy fats such as olive oil may help boost HDL cholesterol. Here I want to add on कि अगर हम सरसों का भी प्योर तेल यूज कर रहे हैं, या हम जहां भी रहते हैं, लाइक अगर हम अहमदाबाद में रह रहे हैं तो पीनट ऑयल यूज हो रहा है, आप उसको यूज कर रहे हो कॉम्बिनेशन में, तिल का तेल यूज कर रहे हो आप कॉम्बिनेशन में, तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड, जो कि आपका HDL बढ़ाने में हेल्प करेंगे. हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऑयल सीड्स जो होते हैं उनका ऑयल लेना है, लाइक पीनट, आपका मस्टर्ड सीड, आपका सीसम ऑयल जिसमें ऑयल ऑलरेडी है, सीसम सीड्स. राइट. ऐसा नहीं है कि लाइक वेजिटेबल ऑयल्स आर नॉट मेड फॉर द ऑयल्स, दो वी आर यूजिंग सोयाबीन ऑयल, sunflower oil, but sunflower seed is okay because that is oil seed. तो कीप इन माइंड whenever you suggest anyone, आप उन्हें सजेस्ट कीजिए जो ऑयल सीड्स हैं, दे आर हैविंग द गुड क्वालिटी ऑफ HDL and they are having the MUFA and PUFA as well with a good combination. So we need to take that thing, right? अब ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं? The body converts excess calories, sugar and alcohol into ट्राइग्लिसराइड. तो इसका मतलब क्या हो गया साफ साफ कि ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में बनते हैं, वो हम बॉडी में ऐसे नहीं ले रहे. अगर आप एक्सेस कैलोरीज खा रहे हो, ओके, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड में. टाइप ऑफ फैट that is carried in the blood and stored in fat cells throughout the body. People who are overweight, inactive or smokers, okay,
तो जो हम लोगों ने बताया ना कि हम ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, तो वो हमें अब समझ में आ रहा है कि अगर ओवरवेट है, इनएक्टिव है, स्मोकर्स है, हैवी ड्रिंकर्स है, या फिर वो एक्सेस कैलोरीज ले रहे हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होकर के हमारी बॉडी में डिपोजिट हो जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं उनकी बॉडी में भी चांसेस है ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होने के। दो वी नो कि प्रोटीन भी अगर हम एक्सेस में ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कन्वर्ट इन द calories, right? So triglyceride score of 150 और higher puts you at risk. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो ट्राइग्लिसराइड है 150 से कम होने चाहिए, विच इज लिंक टू द हार्ट डिसीज एंड द डायबिटीज। आजकल जो पोस्ट कोविड मैं क्लाइंट देख पा रही हूँ, उन लोगों के 300-400 तक ट्राइग्लिसराइड लेवल आ गया है, राइट? अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ होगा। आप लोग मुझे कोई आंसर चैट बॉक्स में दे दो या तो अभी, या फिर मुझे बाद में बताना, ओके, कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ओके, आप लोग क्या चाहते हो, हम बीच में क्वेश्चंस ले लें या फिर हम पहले थोड़ा कंप्लीट कर लें? व्हाट डू यू वांट? मैम लास्ट में लेंगे, क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, ओके। सो अभी तक हम बात कर रहे थे कि क्या कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात किया। अभी क्या ऐसा होता है, ये सच है कि कोलेस्ट्रॉल और जेंडर का इफेक्ट है? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि लेडीज का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आने लगा है, पहले हम लोगों को ये बात नहीं पता थी, है ना? और खासकर 45 प्लस लेडीज का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई आता है। What is the reason for that? Like until menopause, women typically have lower total cholesterol levels than the men of the same age. They also have higher levels of HDL cholesterol, the good kind, right? Because वो बहुत एक्टिव रहती है, काम कर रही है, घर का काम कर रही है, बाहर जा रही है, एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है, और उनके जो अंदर हार्मोन्स है, जो वन ऑफ द रीजन इज एस्ट्रोजन, तो फीमेल सेक्स हार्मोन है, वो क्या कर रहा है, हमारा एचडीएल को बढ़ा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब टूवर्ड्स द मेनोपॉजल आते हैं, या एस्ट्रोजन जो प्रोडक्शन है ना, वो कब होता है, पीक पर जब चाइल्ड बियरिंग एज है, वी कैन से लाइक 35 और 40 इयर्स, ओके। फिर धीरे धीरे वो कम होने लगता है एंड टूवर्ड्स द मेनोपॉजल तक काफी कम हो जाता है। सो वी कैन से लाइक आफ्टर 50 इयर्स, आजकल तो 45-48 में भी लोगों का मेनोपॉजल हो रहा है, तो उसके बाद धीरे धीरे बिकॉज उनका एस्ट्रोजन जो है वो कम होने लगता है हार्मोन, बिकॉज ऑफ दैट जो है कोलेस्ट्रॉल जो है उनका एचडीएल कम होने लगता है और उनका एलडीएल बढ़ने लगता है, राइट? अदरवाइज बाकी जो हमने कंडीशंस अभी पढ़ी थी, सीखी जानी थी, वो सब तो है ही है कि अगर सपोज चाहे वुमन हो चाहे मेल हो, अगर वो लोग आपका प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, खाना सही से नहीं खा रहे हैं, या जो भी हमने बताए थे 5-7 ऑप्शंस, तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो हमारा है, कोलेस्ट्रॉल इन फूड की अगर मैं बात करती हूँ, तो कोलेस्ट्रॉल रिच फूड क्या होते हैं? कैन एनीवन टेल? चैट बॉक्स में आइएगा, वैसे मैंने स्लाइड खोल दिया तो कोई फायदा नहीं है, मैं ही बता देती हूँ, राइट? तो सबको पता है कि नॉन वेज में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, वेजिटेरियन लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। एग्स आर रियली वेरी रिच इन कोलेस्ट्रॉल। यू कैन से कि अगर हम अभी जैसे कोरोना में हुआ था, क्यों बढ़ा है कोलेस्ट्रॉल? आई विल टेल यू, मैं आंसर भी बता दे रही हूँ बातों बातों में, कि लोगों ने 2-2, 4-4 अंडे एक दिन में खाए, और इस टाइम पे सबने एग योग भी खाया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो एग योग में, एक एग में अराउंड 186 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, और हम एक हेल्दी पर्सन के लिए 200 इज अनफ, और अगर अदरवाइज 300 तक अनफ, 300 मिलीग्राम से ज्यादा हम नहीं खा सकते। तो 2 अंडे भी अगर हमने खाए हैं तो वी आर ऑन अबव साइड, राइट? तो कई लोगों तो 2 क्या 4-4, 6-6 अंडे खाए, तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, साइड। और इसी तरीके से लॉबस्टर हो गया, श्रिम्प्स हो गए, आपके जो नॉनवेज आइटम्स होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल काफी हाई मात्रा में पाया जाता है। सो वॉट एवर वी इफेक्ट ईट, वो हमारी बॉडी के ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इफेक्ट करता है, राइट? तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जिन चीजों में कोलेस्ट्रॉल रिच फूड है तो हम मैक्सिमम 300 मिलीग्राम तक ही खा सकते हैं, इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके? अब कोलेस्ट्रॉल का बच्चों पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। There is evidence that cholesterol can begin clogging the arteries during the childhood as well. आप देख पा रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ओबीज भी हो रहे हैं, राइट? सो लीडिंग टू अथेरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट डिजीज लेटर इन लाइफ। शुरुआत में उनको ये सब डिसीजेस नहीं हो रही हैं, लेकिन उनकी आर्टरी में क्लॉग्स बनने लग जाते हैं, क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। AHA recommend kids and teenagers with high cholesterol take steps to bring it down. अगर सपोज कभी किसी बच्चे का या टीनेजर का टेस्ट हुआ है और उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो फर्स्ट हमारी ड्यूटी है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका जो है
कोलेस्ट्रॉल लेवल हमें इमीडिएटली 170 के नीचे लेकर के आना है. ओके, फैमिली हिस्ट्री अगर है हमारी, कोलेस्ट्रॉल कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज लाइक बॉडी एंड द फूड. ओके, जैसे अभी बात चल रही थी, अभी क्वेश्चन किसी ने पूछा था ना कि आखिर कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है, होता क्या है. तो फूड से तो आ रहा है, हमको पता चल गया, हमारी लाइफस्टाइल में उसकी वजह से भी हो रहा है, बट समटाइम्स विद द बॉडी एज वेल. One can contribute to high cholesterol. Some people inherit genes that trigger too much cholesterol production. हमारी बॉडी में जीन्स ही ऐसे होते हैं कुछ कुछ लोगों की, चाहे वो कितना भी ध्यान रख लें, लेकिन उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है. वो कुछ भी खाते हैं, सुना है ना, कुछ भी खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं. सेम वे कुछ भी खाते हैं तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज उनकी यूटिलाइज नहीं होती है और वो कोलेस्ट्रॉल में के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है. कुछ लोगों के लिए क्या है, दिस इज द डाइट मेन कल्प्रिट होती है. राइट, सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल जिन एनिमल बेस्ड फूड में होता है या जिन जिन चीजों में पाया जाता है या फुल क्रीम मिल्क में पाया जाता है, तो इन चीजों का अगर हम ज्यादा खाते हैं तो भी कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है. ओके गाइस, तो अभी समझ में आ गया कि कोलेस्ट्रॉल हमारा डाइट की वजह से तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ हमारे जीन्स की वजह से भी बढ़ता है. सो अब नाउ, अब करना क्या है हम हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए. सबसे पहला, ईटिंग अ हेल्दी डाइट. आप में से आधे से ज्यादा लोगों को क्या, लगभग सबको पता होगा कि हेल्दी डाइट के बारे में हमें फोकस करना है इफ वी आर हैविंग द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल. सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट को हमें कम करना है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं. पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमको ऐड करना है. ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हमें जो है इस तरह के फूड डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी कि हमें डाइट क्या करनी है, बिकॉज ऑल अगेन डिपेंड कि आपका हाइट वेट कितना है, बीएमआई कितना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, एज कितना है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब डाइट प्लानिंग की जाती है. ये आप सब लोगों को ज्यादा अच्छा पता है, राइट. सो और सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइजिंग रेगुलरली. We need to do the exercises on regular basis. Physical activity can help lower cholesterol. The Surgeon General recommends that adult engage in moderate intensity exercise for 2 hours and 30 minutes every week. तो देखिए, 2.5 घंटा कोई बहुत ज्यादा नहीं हो गया हमारा, ये तो हमारा सिर्फ 30 मिनट्स 5 days in a week ही हुआ. और वी वर सजेस्टिंग कि आपका हम ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज करें तो बहुत आराम से कोलेस्ट्रॉल को लो रख सकते हैं. ये लो रखने की बात हो रही है, लेकिन जिसका हाई है तो उनको वही 50 मिनट्स 5 days इन अ वीक करना इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट. मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट. हेल्दी वेट हमको मेंटेन करना है, जिसके लिए हमको ओवरवेट और ओबेसिटी को कम करना है. वेट को कम करके कोलेस्ट्रॉल को बहुत आराम से हम लोग मैनेज कर सकते हैं. ओके, स्मोकिंग को बहुत जरूरी है कि हम स्मोकिंग को लोगों से छुड़वाएं ही छुड़वाएं. जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्मोकिंग हमें बंद करवानी है, क्विट करवानी है, स्लोली स्लोली, एकदम इमीडिएटली हमको नहीं करना है इसके लिए, राइट. बिकॉज एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक्स और आपके स्ट्रोक, कैंसर, इस तरह की कई तरह की बीमारियां हमारी हो जाती हैं और परेशानियां हमारी बॉडी में बढ़ जाती हैं. तो बेस्ट है कि हम कोलेस्ट्रॉल को कम जरूर करें जिससे कि हमारी हेल्थ प्रॉपर हो जाए, राइट. नेक्स्ट इज द, क्या हो गया, क्यों आगे नहीं जा रही. ओके, सो डिसीजेस कोलेस्ट्रॉल से लिंक क्या क्या है, अभी हमने ये सीख लिया कि हमको करना क्या क्या है ना. तो अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो डिसीज है, उससे पहले हम एक बात कह सकते हैं, लाइक जो चीजें हम खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बस्टर्स क्या हो सकते हैं. लाइक ईट मोर फाइबर्स. ओके, फाइबर रिच फूड खाना है, एवरीबडी नोज हाई फाइबर फूड में क्या क्या खाना है सबको पता है. स्टिल आई कैन जस्ट कंसाइजली कि लाइक होल पल्सेस आप सजेस्ट करोगे, आप उनको मल्टीग्रेन आटा सजेस्ट करेंगे, है ना. आप उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए बोलेंगे. उनको कहिए जो आप या खुद जानिए कि आपके फैट आप क्या खा रहे हैं. आपको अपने फैट के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए. लाइक जितना भी फैट आप खा रहे हो, इट इज कमिंग फ्रॉम द डायरेक्ट ऑयल on fats or through the food items also. As you all know कि food items के थ्रू भी हमारा फैट हमारी बॉडी के अंदर आता है. सब में कुछ कुछ अमाउंट में फैट होता है. स्मार्ट प्रोटीन हमें लेनी है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन हमको लेनी है, जिससे कि हमारी बॉडी उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, जिसकी पीडीकास वैल्यू वन हो, राइट. लो कार्ब डाइट पर हमें जाना है, वेट को लूज करना है, स्मोकिंग को क्विट करना है और एक्सरसाइज हमें करनी है. डिसीजेस क्या क्या हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल से लिंक हो सकती हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल के थ्रू जैसा हम डिस्कस कर भी चुके हैं, सीएडी, कोरोनरी हार्ट डिसीज,
ओके, आर्टरीज में प्रॉब्लम हो गई तो कोरोनरी हार्ट डिसीज हो गई हमारी, स्ट्रोक की बात हम कर चुके हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेस भी हो जाती है अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है। कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा हाई है तो डेफिनेटली हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। ओके, और डायबिटीज तो है ही है, सभी को पता है। सो वी कैन से ऑल दीज आर द लाइफस्टाइल डिसीजेस बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लेवल, दो वी आर हैविंग सो मेनी लाइफस्टाइल डिसीजेस नाउअडेज। ओके, तो इस तरह से हम इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक आई एम डन विद द प्रेजेंटेशन, राइट। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, अभी सिद्धार्थ आप क्वेश्चन आपने रेज हैंड किया था, मुझे बताइए प्लीज, तब तक मैं इधर ओपन कर रही हूँ चैट बॉक्स। मैम यस जैसे आपने कहा ना कि HDL के बारे में जी। कि HDL अपने लिए अच्छा है, LDL अपने लिए अच्छा नहीं है। हम्म, तो मेरा क्वेश्चन था, क्या ज्यादा HDL हम लोग ले लेंगे तो क्या वो खराब है? क्योंकि exactly. अपने को तो बैलेंस डाइट करना है, हाँ, तो LDL भी जरूरी है कहीं ना कहीं बॉडी के लिए। राइट राइट राइट। तो ज्यादा क्योंकि अपन को कोलेस्ट्रॉल देखना है तो पहले तो HDL बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली जब सब सही हो रहा है, HDL फूड हम रिच रखते जाएंगे, तो क्या इवेंचुअली वो भी खराब कर सकता है हमको? सी HDL जो है हमें बोला है कि उसकी भी एक लिमिट है ना, कि हाँ एग्जैक्टली उसकी रेंज है, उस रेंज तक ही जाना है। और दैट यू आई कैन टेल यू कि HDL रेंज के ऊपर जा ही नहीं पाता, क्योंकि बिल्कुल वेरी गुड क्वालिटी ऑफ HDL बार बार कोई कितना ले पाएगा, है ना। और LDL भी, हर चीज जो हमारी है ना वो आपकी रेंज में होनी चाहिए। आप लिपिड प्रोफाइल का देख ले सकते हैं कि किस रेंज से किस रेंज तक हमारा ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए, किस रेंज तक हमारा HDL होना चाहिए, किस रेंज तक हमारा LDL होना चाहिए। उसी पैरामीटर के अंदर ही आना है सब कुछ। एनीथिंग इन एक्सेस, एनीथिंग इन डेफिशिएंसी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इवन द प्रोटीन्स वी कैन से, कि आजकल हम लोग जैसे बोलते हैं कि प्रोटीन बहुत खाइए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। एवरी डाइटिशियन इज नाउअडेज राइटिंग लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट, इजंट इट? जरा थम्स अप थम्स डाउन करके जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख दें, या फिर आप इसमें वो भी आते हैं ना, स्माइलीज आते हैं, स्माइलीज के थ्रू लिखिए तो जल्दी दिख पाएगा, वरना चैट बॉक्स में देखना पड़ेगा, राइट। सभी लोग कर रहे हैं ना आजकल, हाई प्रोटीन खाओ, हाई प्रोटीन खाओ, हाई प्रोटीन खाओ। बट क्या किसी को ये बात पता है कि अगर हाई प्रोटीन हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं बॉडी में, तो मसल गेन नहीं होने वाला है, वो भी अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो रहा है ना। बिकॉज ये चीज है ना कि कैलोरीज जितनी भी अबंडेंस में है, लाइक थ्रू द कार्बोहाइड्रेट, थ्रू द प्रोटीन, थ्रू द फैट्स, तीन चीजों से ही मिलती है बेसिकली हमको। और जो भी कैलोरीज अल्टीमेटली क्या है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाली है, और ग्लूकोज की जितनी हमें रिक्वायरमेंट है बस उतना ही यूज होने वाला है, उसके आगे यूज नहीं होने वाला। ओके, सो वी शुड गो इन द गुड क्वालिटी ऑफ थिंग्स, जिसमें हम अच्छी हेल्दी चीजों को हम ले पाए, राइट। जैसा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बीच में मैंने अभी बात करी थी, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मैंने बात करी थी। इस टॉपिक में हम बाद में अगर डिटेल में एक और हम लेंगे लेक्चर, क्योंकि बहुत अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक है कि 3 क्या है, 6 क्या है, कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। बट यस, इन ब्रीफ वी कैन से कि जो हमारा पूफा मुफा है सबका बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए, राइट। फिश अब जो लोग ले रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो फिश के थ्रू ले लेंगे, लेकिन बाकी लोग कहाँ से लेंगे? नट्स एंड ऑयल सीड्स, राइट। तो ऑयल सीड्स को फोकस कीजिए, नट्स को फोकस कीजिए, एंड इन द प्रॉपर अमाउंट, कि कितना अमाउंट किसके लिए रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हमको देना है, राइट। बैलेंस हमें बहुत जरूरी है मेंटेन करना। मैम आपने कोलेस्ट्रॉल और जेंडर के बारे में रिलेशनशिप बताया था, थोड़ा सा उसको एक बार रिपीट करेंगे? देखिए ऐसा है कि जैसे मेल और फीमेल में, सभी लोगों में आजकल तो कोलेस्ट्रॉल का ऐसा नहीं रह गया। पहले एक टाइम था जब होता था कि नहीं भाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना सिर्फ मेल्स को होती थी, यही सुनने में आता था, क्योंकि लेडीज कभी टेस्ट ही नहीं कराती थी शायद, है ना, ये भी एक रीजन था, आई थिंक सो, राइट। बट क्या है अभी, जैसे जैसे एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में, सबको मालूम है कि एक फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो कि हमारी बॉडी की जो एस्ट्रोजन हार्मोन हमारा है वो हमारा जो HDL को अप रखने में हेल्प करता है, स्पेशली इन द गर्ल्स एंड वुमेन्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्ल्स वगैरह जो लोग गलत ईटिंग हैबिट है, लाइफस्टाइल गलत है, उनका तो बढ़ेगा, उसको वो एक अलग बात होगी। बट अगर एवरीथिंग इज फाइन विद अस तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। एस्ट्रोजन जो हमारा है वो रेगुलेट करता है HDL लेवल को, रादर वो LDL को कम करता है और HDL को बढ़ाता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन शायद कि हम लोगों का गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल जो रहता है HDL अच्छा रहता है।
जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, चाइल्ड बियरिंग एज में जो हार्मोन है एस्ट्रोजन वो हाईएस्ट आपका फंक्शनिंग कर रहा है। ओके, तो प्लाक नहीं बनने दे रहा है, एचडीएल जो एलडीएल को कम कर दे रहा है, तो हमें बैलेंस रख रहा है। जैसे जैसे चाइल्ड बियरिंग एज, या आप देखिएगा जिन लोगों को पीसीओडी पीओसीओस होता है या जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आएगा कंपैरेटिवली। ओके, कभी कुछ केसेस अगर आपके आए तो आप देखना इस चीज को, है ना, क्योंकि उनकी वो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो जैसे जैसे आपकी चाइल्ड बियरिंग एज कम मतलब हट जाती है, लाइक 35-40 प्लस होते चले जाते हो आप, 45 के बाद धीरे धीरे एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम होने लगती है उसकी एक्टिविटीज, और टुवर्ड्स द मेनोपॉजल वो बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से उस एज के साथ साथ 50-55 के आसपास जो लोग बहुत अच्छे से भी रह रहे थे हेल्दी, उनके भी कोलेस्ट्रॉल लेवल पे हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है तो उनका ब्लड टेस्ट कराना होता है, तो उसमें बेसिकली आपने बताया था कि एचडीएल और एलडीएल का मेन रेशियो देखना होता है, तो उसमें मैम कितना हमें नोटिस करना चाहिए कि मैम कि इस सिस्टम की वजह से इनको कोलेस्ट्रॉल होगा, मतलब मैम ने जैसे मैंने बताया था ना, जैसे अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए आ रहे हैं, हमने लिपिड प्रोफाइल कराया अपने क्लाइंट्स का या अपना ही कराया, अपना ही करा के देखो। अगर आप लोगों ने, आप देखो 30 प्लस हो सब लोग अगर, तो आप सब लोग भी अपना, अगर आपने अब तक नहीं कराया तो एक बार लिपिड प्रोफाइल जरूर करो, ठीक है। एलएफटी केएफटी हमें पता होनी चाहिए, साथ में लिपिड प्रोफाइल, और अगर घर में हिस्ट्री है डायबिटीज की तो HbA1c भी। ये तो पैरामीटर्स तो सबको पता ही होने चाहिए। अगर आप 40 प्लस हैं तो आपको कराना ही चाहिए हर 2 साल में एक बार, आप कितने भी हेल्दी हो, कोई डिसीजेस नहीं है फिर भी आप कराओ। व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि जो पैरामीटर्स हैं किस लैब से करा रहे हैं उनके रेंज अलग अलग आएगी, इसलिए मैं रेंज की आज बात नहीं कर रही थी, लेकिन जो भी रेंज उसमें आ रही है उस रेंज के अंदर अंदर वो होना चाहिए। ओके, मोटा मोटा जैसे हम लोग बोलते हैं कि ट्राइग्लिसराइड आपके जो है 150 के अंदर अंदर होने चाहिए ना। एचडीएल आपका नॉर्म जो जितना अबव 100 होना ही चाहिए, एलडीएल आपका लेस होना ही चाहिए, है ना। और ट्राइग्लिसराइड जैसे मैंने बताया, तो ट्राइग्लिसराइड जैसे बता चुकी हूँ कि दिट इज बिकॉज ऑफ द फूड। किसी का भी अगर आप इमीडिएटली लिपिड प्रोफाइल में देख रहे हो कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ाओ, तो आप समझ जाओ कि ये पक्का डाइट एक्स्ट्रा खा रहा है। इसकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट जितनी है ये उससे एक्सेस में कैलोरीज ले रहा है, सिंपल। तो आपको फूड पर ज्यादा काम करना है। ओके, तो आप इमीडिएटली कट डाउन कर सकते हो, कट शॉर्ट कर सकते हो कि आप अपने इनटेक मुझे शेयर करो कि कितना आप खाते हो। मैम चाहे वो नॉर्मल वेट हो, एग्जैक्टली, चाहे वो नॉर्मल वेट भी हो, क्योंकि देखिए बीएमआई अगर उसका हम एक कोलेस्ट्रॉल की बात करें ना, अगर देखो बीएमआई उसका नॉर्मल भी है बट उसका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, इसका मतलब वो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट सपोज 1600-1800 थी, तो लेकिन वो इसका मतलब 2000 और 2200 या उससे ज्यादा ले रहा है, तो वो 400 जो कैलोरी एक्स्ट्रा जा रही है ना वो उसकी ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में डिपोजिट हो रही है। क्लियर है। और एचडीएल एलडीएल जो हमारा है कि हम क्या खाने में खा रहे हैं। इसी तरह से मैं होमोसिस्टीन भी, अगर जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं मैं होमोसिस्टीन भी कराती हूँ। होमोसिस्टीन अगर आपका ज्यादा आता है तो इमीडिएटली यू कैन से कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल कम खा रहे हो, मैं करवाती हूँ। जैसे अपने कुछ जो ओल्ड एज या जिनको कोमॉर्बिड स्टेजेस है ना, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे रहते हैं कि जो टेस्ट देखते ही कह पाते हैं। लाइक एल्ब्यूमिन का पता है आप लोगों को, है ना, एल्ब्यूमिन आप पेशेंट को देखते ही बता सकते हो कि आप एक बार एल्ब्यूमिन करा लो। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ इतना ऐसा कई बार हुआ है कि हमारे जो क्लाइंट्स होते थे, पेशेंट्स होते थे, और मैं देख रही हूँ कि उनके कहीं पर एडमा आ रहा है और बाकी वो सब कुछ नॉर्मल नहीं, मैडम बच्चों कुछ नहीं, मुझे बस वीकनेस हो रही है। मैं तो एक बार करा लो, चलो टेस्ट सारे, पता चला। मैंने कहा देखना आपका एल्ब्यूमिन हाई आना, वो लो आना चाहिए, और रियली ऐसा होता है खास, राइट। तो आप फटाफट पकड़ सकते हो सिम्टम से, अगर आप बहुत ध्यान से अपने पेशेंट को जज कर रहे हो, अपने आप को जज कर रहे हो। इवन आप खुद देखो कि जब हम लोगों ने अपने एजुकेशन टाइम पे किया था, एट दैट टाइम वी कैन चेक आउट ना कि आप एनीमिक हो या नहीं हो। क्लिनिकल सिम्टम्स देखकर ही हम चेक करते थे, हम ब्लड टेस्ट थोड़ी कराते थे उस टाइम पर। तो उन चीजों पर भी ध्यान रखो। दो आजकल चलो ऑनलाइन है तो वी कांट चेक दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स, बट यस इसीलिए टेस्ट कराना जरूरी है। तो एलडीएल बढ़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एचडीएल हमारा नॉर्मल आ रहा है टुवर्ड्स हायर साइड जा रहा है, तो हम बता सकते हैं कि अच्छा भाई इसका मतलब आप कुछ ज्यादा ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो, ठीक है, इट्स ओके। बट ठीक है, आपको बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि एलडीएल भी हमें बैलेंसिंग में चाहिए, जैसा भी सिद्धार्थ ने भी बताया, है ना, कि अगर आपका जो सैचुरेटेड फैट्स की भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ना, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, तो अगर वो भी नहीं होंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए हर चीज बैलेंसिंग में हमको चाहिए। या रितिका, नेहा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Yeah. या रितिका?